Hello students, how are you? I hope all of you are fine. So well students, today we are going to discuss a very interesting poem that is from our unit number 5 and book Marigold. So the name of this poem is The Lazy Frog. As the name mentions, the lazy frog. So this poem is about a frog that is very lazy, that doesn't like to do any work, and whenever its mother calls him, even then it doesn't do any work. It just doesn't bother about, and it ignores the every call by its mother. So let's see what is there, what is mentioned about its laziness in this poem. So first of all, read a few introductory lines that are given in the starting of this poem, that is, on a school day you are busy studying, playing and chatting with friends. When you have a holiday from school, what do? Would you behave a little like the frog in the following poem? So it is asked here, or it is told here, on a school day you are very busy studying, playing and chatting with the friends. Whenever you go to school, then you remain busy while doing your work or classwork, homework, and while chatting or playing with your friends. But sometimes whenever you are having a holiday, then what do? Then you are not having your friends with you at your home and with whom you can talk or you can play, or moreover on a holiday you do not do your homework also. Then on that day what do? Maybe you also behave like very lazily, like this lazy frog, isn't it? So would you behave a little like the frog in the following poem? So let's see how does this frog behave, and how do you behave whenever you are having a holiday. Just compare yourself with this frog, whether you behave like that frog only. So let's see. So now here you can consider this picture. Here it is the mother of this lazy frog who is calling that frog, but the frog doesn't bother to do any work, or he doesn't bother about its mother's call. So Fred is a very lazy frog who lolls all day upon a log. He always manages to shirk doing a single stroke of work. His poor old mother calls in vain, "Come in and help." He doesn't bother to move 2 inches, much preferring to be extremely hard of hearing. He lies there in a silent heap and stays conveniently asleep. If a lazy frog hops past, you would think he would get up at last to bow and help her on her way. But no, I am ashamed to say that when a lady frog comes by, he doesn't open up one eye. So this was our poem. Now here you can see that this is a frog that is lying on a log of wood. Log of wood means a very thick piece of wood. As you can see here, a frog is lying on this log of wood, on this piece of wood, and it is lying here very lazily. Now again, Fred is a very lazy frog who lolls all day upon a log. Now Fred is the name of this lazy frog. इस frog का name क्या है? Fred. Who lolls all day upon a log. And Fred is very lazy. Who lolls all day upon a log. Lolls means क्या होता है? Lazily, ऐसे ही बिना किसी कामकाज के फ्री वे से किसी भी जगह पर पड़े रहना, आलसीपन से पड़े रहना. सो ये जो फ्रेड है एक बहुत ही लेजी फ्रॉग है, बहुत लेजी मेंढक है, आलसी मेंढक है, और वो सारा दिन एक लकड़ी के गट्ठे के ऊपर, लकड़ी के पीस के ऊपर ऐसे ही लेटा रहता है. ना कोई काम करता है, ना कोई बात करता है, कुछ भी नहीं करता, इधर से उधर हिलता तक नहीं है. मतलब बड़े आराम से वहां पर बैठा अपनी
कभी नींद को एंजॉय करता है और लेटा रहता है, बस उसको काम करने का दिल ही नहीं करता। इवन ही ऑलवेज मैनेजेस टू शर्क डूइंग अ सिंगल स्ट्रोक ऑफ वर्क। इवन उसको जब लगता है ना कि कोई उसे कोई काम कह दे, या फिर किसी ने अगर थोड़ा सा भी काम कह दिया उसे, या फिर कोई भी उसे लगता है कि ये काम करना पड़ेगा, तो क्या करता है वो, ही ऑलवेज मैनेजेस टू शर्क डूइंग अ सिंगल स्ट्रोक ऑफ वर्क। शर्क क्या होता है, काम से जी चुराना, और वो किसी ना किसी तरह से तब वो मैनेज कर लेता है उस काम को ना करने का, उस काम को अवॉइड करने का, वो किसी ना किसी तरह से डेफिनेटली वो मैनेज कर लेता है, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा लेजी है और वो काम करना ही नहीं चाहता। ही ऑलवेज मैनेजेस टू शर्क डूइंग अ सिंगल स्ट्रोक ऑफ वर्क। सिंगल स्ट्रोक ऑफ वर्क मतलब एक छोटे से छोटा काम भी वो नहीं करना चाहता, और अगर उसे लगता है कि उसे कोई काम करना पड़ सकता है तो फिर भी वो किसी ना किसी तरह से इस तरह से मैनेज करता है कि वो उस काम को करता ही नहीं है। His poor old mother calls in vain, "Come in and help." He does not bother to move 2 inches, much preferring to be extremely hard of hearing. अब उसकी बेचारी बूढ़ी माँ, his poor old mother, poor means बेचारी, old बूढ़ी, mother calls in vain. calls in vain, calls मतलब बुलाना, in vain मतलब बेकार में ही, जिसका कोई फायदा ही नहीं है, कोई यूज नहीं है। अब उसकी बेचारी बूढ़ी माँ उसको बुलाती है, कम इन एंड हेल्प, कि आओ और मेरी हेल्प कर दो, बट इट इज ऑल इन वेन, बट इसका कोई यूज नहीं, कोई फायदा नहीं। क्यों? क्योंकि ही डज नॉट बॉदर टू मूव 2 इंचेस। और इवन क्यों इसका कोई फायदा नहीं कि उसकी मम्मी उसको बुला रही है, इवन फिर भी वो कोई केयर ही नहीं करता, बिकॉज ही डजेंट बॉदर। डजेंट बॉदर मतलब उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई भी उसको बुला रहा है, चाहे उसकी मदर बुला रही है या फिर कोई और बुला रहा है। ही डजेंट बॉदर टू मूव 2 इंचेस, मच प्रेफरिंग टू बी एक्सट्रीमली हार्ड ऑफ हियरिंग। हार्ड ऑफ हियरिंग क्या होता है? किसी बात को सुनकर भी अनसुना कर देना, ऐसा शो करना कि हमने तो उस बात को सुना ही नहीं। तो ही डज नॉट बॉदर, वो इस बात की बिल्कुल फिक्र नहीं करता कि उसकी मदर उसे बुला रही है किसी काम की हेल्प के लिए। एंड ही ऑल्सो डजंट बॉदर टू मूव 2 इंचेस, वो इतना भी नहीं करता, वो उसको 2 इंच भी अगर हिलना हो ना तो उसे वो भी बड़ी प्रॉब्लम लगती है। वो 2 इंच हिलना भी नहीं चाहता कि उठ के अपनी मम्मी की बात सुन ले, या फिर मम्मी को कोई जवाब ही दे दे कि मैं नहीं आऊंगा, या कुछ ऐसा। even much preferring to be extremely hard of hearing, और इवन वो इस तरह इस चीज को प्रेफर करता है, क्या प्रेफर करता है कि उस बात को सुन के भी अनसुना कर देता है। मतलब ऐसा रिएक्ट करता है कि उसने तो कुछ सुना ही नहीं, इसलिए ना तो वो हिलता जुलता है, ना ही कोई रिस्पॉन्स करता है अपनी मदर को। ठीक है। ही लाइज देयर इन अ साइलेंट हीप एंड स्टेज कन्वीनियंटली asleep. कन्वीनियंटली बहुत ही आराम से। ही लाइज देयर इन अ साइलेंट हीप, साइलेंट एकदम चुपचाप, क्वाइटली। हीप मतलब किसी चीज का ढेर। हीप क्या होता है? किसी भी चीज का ढेर। तो वो क्या करता है, अपनी मम्मी की बात को तो अनसुना कर देता है, हिलता भी नहीं है, हल्का सा भी नहीं हिलता। ही लाइज देयर इन अ साइलेंट हीप, और किस तरह शो करता है कि अनसुना कैसे करता है कि वो वहीं पर जहां पड़ा है वहीं पड़ा रहता है, लेटा रहता है, एक साइलेंट हीप की तरह, एक चुपचाप, एक आराम से पड़े हुए किसी चीज के ढेर की तरह, जैसे कि वहां पर कोई इंसान है ही नहीं, कोई सांस लेने वाला कोई लिविंग बीइंग है ही नहीं। इस तरह से वो बिहेव करता है, एकदम साइलेंटली किसी ढेर की तरह, किसी चीज के ढेर की तरह वहीं पर पड़ा रहता है जहां वो पहले लेटा होता है। एंड स्टेज कन्वीनियंटली asleep, और आराम से सोया रहता है। ठीक है। इफ अ लेजी फ्रॉग हॉप्स पास्ट, you would think he would get up at last to bow and help her on her way. अगर अब आप ये सोचोगे कि if a lady frog hops past, अब यहाँ पे क्या बोला गया है कि अगर कोई लेडी फ्रॉग उसके पास से निकलती है फुदकती हुई, हॉप्स मीन्स जंप करना, जैसे कि मेंढक करते हैं। सो इफ अ लेडी फ्रॉग हॉप्स पास्ट,
You would think he would get up at last to bow and help her on her way. और अब आप सोचोगे कि अगर कोई लेडी फ्रॉग उसके पास से निकलती है फुदकती हुई, तो आपको लगता है कि अब तो एट लास्ट वो उठेगा उस लेडी फ्रॉग को बो करने के लिए, बो मतलब किसी को रिस्पेक्ट देने के लिए, उसके आगे झुकने के लिए, एंड हेल्प हर ऑन हर वे, और उसको उसके रास्ते में हेल्प करने के लिए। दैट मीन्स कि अगर कोई लेडी फ्रॉग उसके पास से निकलती है तब भी वो इतना बेशर्म है कि वहीं पर ही अपना आराम से लेटा रहेगा, सोया रहेगा। ऐसा नहीं कि जैसा हम लोग सोचते हैं कि शायद वो उठेगा किसी लेडी फ्रॉग को वहां से निकलते हुए देखकर, कि वहां उठेगा वो और उस लेडी फ्रॉग को बो करेगा, दैट मीन्स विश करेगा, जैसे नमस्ते करने के लिए थोड़ा झुकते हैं या फिर रिस्पेक्ट देने के लिए किसी के आगे झुकते हैं हल्का सा, और उसको हेल्प करेगा उसके रास्ते में। अगर मानो कि वो रास्ता पूछ रही है किसी जगह का, तो वो उठकर उसको रास्ता दिखाएगा। बट नो, यू वुड थिंक ही वुड गेट अप एट लास्ट टू गो एंड हेल्प हर ऑन हर वे, बट नो, आई एम ashamed to say that when a lady frog comes by, he doesn't open up one eye. मतलब उसे इतनी भी शर्म नहीं है कि कोई लेडी फ्रॉग पास से गुजर रही है कि वो उठ के उसको रिस्पेक्ट दे दे, या फिर अपनी आंख खोल के उसकी हेल्प कर दे, आंख खोल के उसको रिस्पेक्ट दे, या फिर वो रास्ता पूछ रही है तो उसको उसका रास्ता दिखाए। बट नो, बट ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। आई एम ashamed टू से, मुझे ये कहते हुए भी शर्म आ रही है, दैट व्हेन अ लेडी फ्रॉग कम्स बाय, कि जब कोई लेडी फ्रॉग कोई नजदीक आती है, ही डजंट ओपन अप वन आई, वो तो अपनी आंख खोलता तक नहीं है, एक आंख तक नहीं खोलता कि आंख खोल के देख भी ले कि कौन वहां से निकल रहा है, कहीं किसी को किसी हेल्प की जरूरत है या नहीं। सो दिस वॉज आर पोएम। मतलब वो इतना ज़्यादा लेजी है कि उससे किसी भी बात का कोई फर्क नहीं पड़ता। सो द नेम ऑफ द फ्रॉग इज फ्रेड, एंड वो सारा दिन एक लकड़ी के गट्ठे के ऊपर पड़ा रहता है, किसी भी काम को नहीं करता, किसी भी काम में वो इंटरेस्ट नहीं लेता। इवन उसकी मदर उसको बुलाती रहती है, ही डजेंट केयर अबाउट हिज मदर, अपनी मदर की भी केयर नहीं करता है, उसकी बातों को सुना अनसुना कर देता है, सुनकर भी अनसुना महसूस करवाता है कि जैसे उसने कुछ सुना ही नहीं, और एक साइलेंट हीप की तरह, एक साइलेंट किसी ऑब्जेक्ट की किसी चीज के ढेर की तरह साइलेंटली वहीं पर आराम से पड़ा रहता है और अपनी नींद को एंजॉय करता है। और इवन अगर कोई लेडी फ्रॉग भी उसके पास से गुजरती है तब भी उसको इतनी शर्म नहीं आती कि उठकर उसकी हेल्प करे या उसको रिस्पेक्ट दे, उसको रास्ता दिखाए। बट इवन बिल्कुल भी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इवन जब उसके पास से कोई लेडी फ्रॉग गुजरती भी है तो वो इवन अपनी एक आंख खोलकर देखता तक नहीं कि कौन उसके पास से जा रहा है। सो इट वॉज दैट मच लेजी कि ये जो फ्रॉग है इतना ज्यादा लेजी है। ठीक है, so with this our poem has come to an end. I hope you have understood it well. Thank you. Have a nice day.